गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां जय मां जय मां। Now we are dealing with some questions that people have asked. So I will take one question this time. It's strange. Someone has asked, I'm reading the question because I've written down everything. Someone has said, someone was a Mahatma in his previous birth and due to the effect of his previous sadhana, he is reborn as human in a very pious family which has history of great saints in the lineage. But now he is indulged in all wrongdoings. So where is the effect of previous birth sadhana? Has it not carried forward in this birth? Is it play of illusion or misuse of free will? Very confusing. The person who's asked this question, I think, is quite confused, okay, about a lot of things. Firstly, if someone was a true Mahatma, okay, what is the meaning of Mahatma? I think in one of the last episodes I have mentioned what is Jivatma, Mahatma and Paramatma. Now Mahatma is somebody, Maha Atma है. सबसे पहले तो ये समझिए जो Maha Atma का मतलब क्या है? A person who is realized, a person who has realized that this entire world एक मिथ्या है, illusion है, और वो यहाँ से छूट गया है ऑलरेडी, वो शरीर लेके घूम रहे हैं, पर वो ये दुनिया में ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड. ही नोज द रियलिटी ऑफ द ट्रूथ ऑफ नेचर. ही नोज द रियलिटी. ही नोज दैट ही इज सेल्फ रियलाइज्ड. महात्मा का मतलब वो होता है जो ये जानता है कि ये दुनिया मिथ्या है, पर मैं शरीर अभी भी मेरा है, इसलिए मैं जिंदा हूं, यहाँ पे घूम रहा हूं, पर मैं आई एम नॉट अटैच्ड टू द वर्ल्डली थिंग्स ओवर हियर. सो इज ऑलरेडी फ्री. यहीं पे जो महात्मा होते हैं वो शरीर तो उनका होता है, बट दे हैव बर्न्ड एवरीथिंग हियर एंड नाउ. उनके फिजिकल कंसर्न्स, उनके मेंटल कंसर्न्स, उनके इमोशनल कंसर्न्स, वो सारे यहीं पे खत्म हो गए हैं, टूट गए हैं. So he is not concerned. ना उनका कोई बिजनेस है, ना उनका कोई अटैचमेंट है किसी से, ना उनके फिजिकल कोई कंसर्न्स है कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, या हमें अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहने, कुछ भी नहीं है उनको. आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रू महात्मा. इफ यू से महात्मा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रू महात्मा, नॉट somebody who claims to be. There's a lot of difference in that, okay? So person who's a true Mahatma, he will not be reborn. Why a pious family? He himself is that. Why should he be born into a pious family, like you have said, that if he was that, due to the effect of his previous sadhana, he is reborn as human? अरे साधना उनकी खत्म हो गई है, तभी तो वो महात्मा हुए हैं. तो why would he be born as a human he is a human, right? Why would he be born into a pious family and all that? And why would he do any wrongdoings? I don't agree to that, okay? महात्मा अगर है तो वो छूट गए, उनको पता है. हाँ, अगर उनको वापस आना है तो वो उनकी इच्छा शक्ति से होगा, कर्म से की वजह से नहीं. उनके कोई कर्म नहीं है, यहीं पे खत्म हो गए हैं सारे कुछ, और अब परमात्मा उनको खींच लेंगे और अपने में लीन कर लेंगे. वो है महात्मा, ट्रू महात्मा, ओके? सो महात्मा को क्या कहेंगे हम? सुपर ह्यूमन कहेंगे. He's not a human being. He's superhuman. Let's put it that way. Then you have said indulgence of wrongdoings. Will he do indulgence of wrongdoings? If he was not a Mahatma, see, the thing is, Mahatma अगर है तो wrongdoings की बात ही नहीं है. एक साधक है, let's take it that way, जो बहुत ही डीप साधना में है, okay? बहुत ही deeply involved in साधना, और उनकी साधना भंग हो गई कि कोई मेनका आ गई.
and he got carried away by this Menka and got carried away in lust and desire. तो उनको योग भ्रष्ट कहते हैं. महात्मा नहीं है अभी भी, वो बहुत ही साधना कर रहे हैं पर योग भ्रष्ट हो गए. तो योग भ्रष्ट का क्या होता है? What happens to them? When they die, they do come back into a very good family and whatever, and that sadhana never gets disconnected. Sadhana तो है ही, but because they were involved with a menka or something and they got carried away with lust and desire and forgot the sadhana, they take a birth again. Now when they take a birth again, what do they take that birth for? To finish those desires that came up, that sprang up, in their previous birth when they were a yogi. तो वो योग भ्रष्ट होते हैं जो इस जन्म में वापस आते हैं, दूसरे जन्म में वापस आते हैं, और वो जो उनकी जो भी इच्छाएं या लस्ट होता है, जैसे लड़कियों के पीछे भागना या जो भी है, वो दूसरे जन्म में वो पूरा जन्म उसी में यूज करते हैं टू कंप्लीट दैट वासना, जिसकी वजह से उनका योग टूट गया था, यानी कि योग भ्रष्ट हुए थे. पर जैसे ही वो लस्ट वासना खत्म हो जाती है, अगेन दैट साधना पिक्स अप. सो दैट साधना इज नेवर गॉन. स्पिरिचुअलिटी कहीं नहीं जाती है. जो आपने साधना की है इन द प्रीवियस बर्थ्स, इट इज ऑलवेज विथ यू. बट देर इज एन इंटरम पीरियड वेर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, लाइक यू आर सेइंग रॉन्ग. वो महात्मा नहीं करते हैं, योगी होते हैं, या कुछ योगी भी नहीं बोल सकते, जो योग साधना में होते हैं. तो उनका भंग हो गया, तो अगला जन्म लिया. फिर उनकी जो वासनाएं थी उस जन्म में जो उठी थी इन देयर साधना, तो वो कंप्लीट करने, वो एग्जॉस्ट करने, वो दोबारा जन्म लेते हैं. और फिर वो जो भी उनकी वासनाएं हैं वो करते रहेंगे जिंदगी भर. और वो जैसे ही खत्म होने आएगी, वो थक जाएंगे वो वासनाओं से, वो जो साधना छूट गई थी वो वापस आ जाती है. एंड देन दे राइज अगेन. That is called a yog bhrasht. So they fulfill their desires of lust in this life, and when it is over, they get back to their sadhana from where they had left off. Okay? And you are asking कि पिछले जन्म में जो हुआ था वो continues in this. It's not necessary that it continues in this जन्म. हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं. Okay? पिछले बहुत सारे जन्म हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट लास्ट जन्म का ही कर्म हम एग्जॉस्ट इस जन्म में करेंगे. शायद 3 जन्म पहले जो हमने किया है वो इस जन्म में शायद हम लोग एग्जॉस्ट करने आए हैं. सो इट्स नॉट द इमीडिएट पास्ट लाइफ. इट कुड बी 3 लाइव्स बिफोर द पास्ट लाइफ, जहां पे हमने कुछ कर्म किए थे, एंड वी हैव कम बैक टू एग्जॉस्ट दैट इन दिस लाइफ टाइम. सो द लास्ट जन्म का जो होता है कर्म, वो इस जन्म में शायद हम लोग ना करें. वो और 3 जन्म होंगे, उसके बाद शायद वो जन्म के कर्म आ जाएंगे हमारे सामने जो हमें एग्जॉस्ट करने हैं. सो वो गति ऐसे चलती है. इमीडिएट पास्ट लाइफ का इस जन्म में नहीं आता है. सो now you have asked about illusion. Is it play of illusion or misuse of free will? देखो, सिंपल सी बात है that this life itself is an illusion. So जो महात्मा है उनको कोई illusion नहीं है. उनको मतलब ये नहीं है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, was it my free will, or all these questions that you have asked. No. He already knows it's an illusion. This life itself is illusion. The only truth is I am that. So where is the question of any illusion deluding him? Nothing like that. He knows illusion है, और मैं यहां से छूट नहीं आया, मैं छूट गया हूं. So there is nothing like free will or anything, because he's utilized his free will. He's already free. He's already a spiritual master. So there's no question on that. So I hope you have understood. I hope this satisfies you, and do let me know. I think I have covered all your questions, So I hope it's very clear. It has to be very clear. महात्मा क्या है, योग भ्रष्ट क्या है, और ये
मिथ्या है, वो महात्मा जानते हैं, ये इल्यूशन है, वो महात्मा जानते हैं। महात्मा को कोई इल्यूशन नहीं हो रहा है, वो जानते हैं कि ये रियलिटी क्या है, कि यहाँ पे इल्यूशन ही इल्यूशन है, ये माया ही माया है, ये सब जानते हैं। इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहते हैं, वरना हम क्यों बोलेंगे ये महात्मा है। सो दैट्स दैट, डू लेट मी नो। जय मां। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां।